Hello, dear students. How are you all? I hope you all are very good. Today, we are here to start and explore the very first chapter of class 2nd computer, that is about an interesting machine. Okay, so in this session today, students, we are going to learn the meaning, the uses, and also the concept of a very interesting machine, which is known as computer. Okay, see. So, the chapter outline which we are going to cover today is that what is a computer, what are machines, and what are the uses of a computer. Okay, see. So, students, the very first topic is what is a computer? See, you can see this picture. This is the picture of a computer, right? So, computer is a man-made machine which is very useful. As I told you, we have discussed in our previous class also कि कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन है, मीन्स एक ऐसी मशीन जो मैन मेड है, यानी कि मैन के थ्रू बनाई गई है, एंड ऑल्सो इट इज अ वेरी यूजफुल मशीन as it helps us to do a lot of different tasks very easily, right? See, a computer is an electronic machine which help us to perform many tasks. As I told you कि इसके थ्रू हम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. And also it is an electronic machine. Means what? It runs on electricity. Okay? Secondly, what they have given you that it needs electricity and our instructions to work. कंप्यूटर को वर्क करने के लिए हमारे इंस्ट्रक्शंस की और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, राइट? इट कैन वर्क इजीली. कंप्यूटर काफी इजीली वर्क करता है एंड क्विकली, यानी कि जल्दी भी वर्क करता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक किए बिना. इट वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत फास्टली वर्क करता है कंप्यूटर. इट हैज़ अ मेमोरी लाइक अस. कंप्यूटर के अंदर हमारी तरह ही एक मेमोरी होती है जिसके अंदर ये अपने सारे डिफरेंट टास्क को, फाइल्स को, या जो वर्क ये करता है उसे स्टोर रखता है. ओके, एंड टुडे इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड आज के टाइम पर कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सी, they have given you here the picture of a computer. What you have to do, you have to join the dots. ये जो dots given है, आप इन्हें join करके picture को complete करेंगे, and then you can color it also. Okay, and then you have to write its name, that I am a computer. Okay, what is it? It is a computer. Okay, see. Now next what they're saying is that computer is everywhere. Computer students almost हर एक particular place पे आज के time पर present है. Nowadays computer are used everywhere. It has become an important part of our life. As I told you कि आज के टाइम पर कंप्यूटर्स का यूज़ ऑलमोस्ट हर एक जगह पर होता है. ये हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है. यू कैन सी कंप्यूटर को हम अपने होम्स यानी कि घर में, शॉप्स, बैंक, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ऑफिस, स्कूल एक्सेट्रा. ओके, डिफरेंट प्लेसेस पे, ऑलमोस्ट एवरी प्लेस पे वी यूज कंप्यूटर टुडे. Right? Now, next we have the topic that is types of computer. So children, let us meet with different types of computers. अब यहाँ पर हम computer के different types को discuss करेंगे. Like first of all, we have this computer which is known as a desktop computer. Okay, इसे क्या कहा जाता है? We call it desktop computer. Why? Because we keep it on a desk. हम इस computer को एक desk पे रखते हैं और इसीलिए इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है. ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करता है. एंड यू कैन नॉट कैरी दिस कंप्यूटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. डेस्कटॉप कंप्यूटर को किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैरी नहीं किया जा सकता. ओके, सेकेंडली वी हैव व्हाट दिस कंप्यूटर नोन एज लैपटॉप. ओके, व्हाट इज सेइंग? हाय, आई एम अ लैपटॉप. I am small and light computer. You can put me on your lap. So what is this? This is a laptop, a type of computer only. And ये एक छोटा and एक light यानी कि हल्का light weight computer होता है. इसे आप easily अपने lap में रख के
वर्क कर सकते हैं. ओके. The next type of computer which we have is this one, which is known as palm top computer. This is palm top computer. It is also a small computer, यानी कि ये भी एक छोटा सा कंप्यूटर है and I can fit in your palm. इसे आप easily अपने palm पे hold कर सकते हैं, right? Then this is a tablet. Okay, ये क्या है? Tablet है. I am smaller than laptop but larger than palm top. I have a touch screen. So students, tablet एक ऐसा टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो लैपटॉप से छोटा होता है लेकिन palm टॉप कंप्यूटर से बड़ा होता है. ओके, एंड इसमें क्या होती है? इसमें भी एक टच स्क्रीन होती है जिसे आप इजीली टच करके इस पे फंक्शन या वर्क कर सकते हैं. ओके. The next we have the topic advantages of a computer. Computer के क्या क्या advantages हैं? Let's discuss about that. Computer is not just an ordinary machine. It has many advantages which makes it special. What they're saying कि कंप्यूटर कोई एक ऑर्डिनरी यानी कि कोई एक सिंपल सी मशीन नहीं है, एक आम मशीन नहीं है. इसके थ्रू हम बहुत सारे फंक्शंस को या टास्क को आसानी से अचीव कर सकते हैं. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो इसे स्पेशल बनाते हैं. लाइक नंबर 1, इट्स स्पीड. ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है बहुत फास्टली वर्क करता है. इट वर्क्स वेरी फास्ट. इट कैन परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस क्विकली. कंप्यूटर एक बहुत सारी और बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को भी क्विकली सॉल्व कर सकता है. ओके. सेकेंड advantage is its accuracy. Okay, computer always gives correct result. It always gives correct output according to the input it receives. और they say कि कंप्यूटर हमेशा करेक्ट रिजल्ट्स आपको देता है. ठीक है, आपने जिस भी अकॉर्डिंग इसमें इनपुट को डाला है, जो भी इनपुट कंप्यूटर रिसीव करता है, उस अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमेशा करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है. Then third is diligence. Diligence means what? A computer does not get tired. Computer कभी भी tired यानी कि थकता नहीं है. It can keep working for long hours and can do the same work again and again with same efficiency for a long time. Computer जो है कई घंटों तक for long hours ये काम कर सकता है बिना tired हुए and same work को, एक ही वर्क को बार बार आपका करेगा अगर आप उसे क्या इस तरीके का टास्क देते हैं. ओके, वो भी सेम एफिशिएंसी के साथ एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज मेमोरी. सो जो बेस्ट थिंग है अबाउट अ कंप्यूटर इज इट्स लार्ज मेमोरी. ओके, सबसे बेस्ट चीज कंप्यूटर की यही है कि इसकी मेमोरी बहुत लार्ज होती है. कंप्यूटर एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है एंड उसे कभी भी फॉरगेट यानी कि भूलता नहीं है. नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग. मीन्स व्हाट? कि कंप्यूटर एक मल्टीपर्पस मशीन है. ये वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकती है एंड ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स में एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं बाय द कंप्यूटर. देयरफॉर इट इज नोन एज दैट इट इज अ मल्टीपर्पस मशीन, मल्टीटास्क मशीन. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस. ये थे कंप्यूटर के एडवांटेजेस, कुछ फीचर्स जो उसे क्या बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं. अब हम कंपैरिजन करेंगे कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग के बीच में. सो चिल्ड्रन, जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, राइट? इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स क्रिएटेड बाय मैन. आज तक जितनी भी नई चीज़ें डिस्कवर एक ह्यूमन बीइंग ने करी है उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट जो है दैट इज कंप्यूटर ओनली, बिकॉज ये उन सभी टास्क को बहुत ईजिली कर सकता है जो हम नहीं कर सकते. इट कैन डू मेनी थिंग्स दैट वी कैन नॉट डू. So let us see how a computer is different from a man. Okay, so here we have the features of computer and we are comparing it with the features of human being. So first of all, a computer needs electricity to work. Computer को work करने के लिए electricity की ज़रूरत है, but human beings को food, air and water require है. Secondly, कंप्यूटर का जो मेमोरी है इट हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी, बहुत अच्छी मेमोरी होती है एंड ये कंप्यूटर इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर है कंप्यूटर उसे कभी फॉरगेट यानी कि भूलता नहीं है. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, सो ह्यूमंस कुछ इंफॉर्मेशन को कभी कभी भूल जाते हैं जो उनकी मेमोरी यानी कि उनकी ब्रेन या माइंड में स्टोर होता है. ह्यूमंस कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर माइंड. नेक्स्ट,
A computer does not make mistake, it gives correct result. Computer कभी भी mistakes नहीं करता, हमेशा correct result provide करता है. But human beings जो है, they can make mistakes. Next, a computer works very fast. Computer बहुत fastly work करता है. But humans cannot work as fast as a computer. Humans जो है, कंप्यूटर की स्पीड पर काम नहीं कर सकते. जितना फास्टली कंप्यूटर वर्क करता है, उतना ह्यूमन बींग्स फास्टली वर्क नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता. ये फॉर लॉन्ग आवर्स कॉन्टिन्यूसली वर्क कर सकता है. बट ह्यूमन बींग्स जो है, अगर वो एक लंबे टाइम पीरियड तक काम करते हैं, देन दे गेट टायर्ड. नेक्स्ट, a computer can do the same work again and again, it never get bored. कंप्यूटर सेम वर्क को बार बार आसानी से कर सकता है, वो कभी भी बोर नहीं होता. लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है, कभी कभी क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं अगर वो सेम वर्क को अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं. देन अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स. कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती है. बट ह्यूमन बींग्स के पास फीलिंग्स होते हैं, बिकॉज दे कैन फील सैड, हैप्पी और एंग्री. नेक्स्ट, अ कंप्यूटर नीड्स अवर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. कंप्यूटर को हमारे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है वर्क करने के लिए. जब तक हम कंप्यूटर को कोई इनपुट या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, इट विल नॉट वर्क. बट ह्यूमन बींग्स कैन वर्क ऑन देयर ओन. ह्यूमन बींग्स अपने आप वर्क कर सकते हैं. दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय समवन. एंड एट द लास्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजंस. कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता. बट ह्यूमन बींग्स कैन मेक एनी डिसीजन. ह्यूमन बींग्स जो है, आसानी से किसी भी तरीके के डिसीजन ले सकते हैं ऑन देयर ओन. ओके, so that was a whole differentiation between the computers and the human beings, and the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you, kind of a very interesting chapter. Okay, so let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well, and thanks for your preference.